Hello children, hope you are doing well and keeping happy and healthy. I am your SST teacher Mrs. Mona Jajora and today I am going to teach you class 4th chapter 1. It is our country India. In this chapter we will learn more and more about our country. Firstly we see the content and then start the chapter. Content: location of India, neighboring countries of India, political division of India and physical features of India. Our first topic is location of India. India is located in the southern tip of Asia continent. It is surrounded by the Bay of Bengal of the east, the Arabian Sea on the west and the Indian Ocean on the south. Our country is the 7th largest country in the world and 3rd largest country in the Asia. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा इंडिया कहाँ पर लोकेटेड है। हमारा इंडिया एशिया के दक्षिणी सिरे में स्थित है और वो तीन और किससे घिरा हुआ है? पानी से घिरा हुआ है। साथ ही आप ये भी देख सकते हैं कि हमारा इंडिया जो वर्ल्ड में है वो 7वें नंबर पर आता है और एशिया में 3रे नंबर पर आता है। ओके, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग लेट्स सी ऑन द मैप। एशिया का ये मैप है किड्स। नाउ चिल्ड्रन लेट्स सी, आवर इंडिया इज लोकेटेड इन द सदर्न टिप ऑफ एशिया। यहाँ पर हमारा एशिया क्या है? लोकेटेड है। And we can see here our India is surrounded by 3 water bodies. Our India is surrounded by 3 water bodies. In the east, Bay of Bengal. In the west, Arabian Sea. In the south, Indian Ocean. In the east, Bay of Bengal. In the west, Arabian Sea. And in the south, Indian Ocean. Next topic is neighboring countries of India. Children, do you know who is your neighbor? Yes. Like that we have to know about our country neighbors. Let's see. Neighboring countries of India. Neighboring countries share a common border with our country. The neighboring countries of India are Nepal, Bhutan, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, Sri Lanka, Maldives, China and Myanmar. Neighboring countries वो देश हैं जो हमारे भारत देश से, हमारे जो कंट्री है उससे कहीं ना कहीं बॉर्डर से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और वो क्या क्या है? नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव्स, चाइना एंड म्यांमार। फर्स्ट टॉपिक इज Afghanistan and Pakistan are share their border with northwest side. China, Nepal and Bhutan are share their borders with the north side. Myanmar and Bangladesh are sharing their borders with northeast side. Fourth one is Sri Lanka and Maldives are sharing their water borders in south side. Sri Lanka and Maldives are sharing their water borders in south side. Okay, let's see on the map. Now children, can you see here? Afghanistan and Pakistan, they are sharing their border with us in the east side. I repeat again, Afghanistan and Pakistan, they are sharing their border with us in the east side. Nepal, Bhutan and China, they are sharing their border with us in the north side. Then Myanmar and Bangladesh, they are sharing their border with us in the east north side. Okay, क्या है? म्यांमार और बांग्लादेश, दे आर शेयरिंग देयर बॉर्डर विथ अस इन द ईस्ट साइड. नाउ लास्ट वन इज श्रीलंका एंड मालदीव्स, दे आर शेयरिंग देयर बॉर्डर विथ अस इन द साउथ साइड. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया. इट रिप्रेजेंट द स्टेट एंड टेरिटरीज विथ देयर बॉर्डर्स. Political division of India, it represents the state and territories with their borders. For the convenience of administration of the central government, our country is divided into 28 states and 8 union territories. पॉलिटिकल डिवीजन क्यों किया गया है? ताकि हम इंडिया को अच्छे से डिवाइड कर सके और एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस पे अच्छे से हमारे इंडिया की देखभाल हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे इंडिया को कितने स्टेट में डिवाइड किया गया है? 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज में, ठीक है। आर country is governed by central government and state governments. Central government takes care of the whole country as well as the union territories. State government look after their state. हमारी जो कंट्री है उसको शासन करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और साथ में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसको देखभाल भी करती है? यूनियन टेरिटरीज की भी देखभाल करती है. एंड एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट लुक आफ्टर देयर स्टेट. जो हमारी स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ हमारे उनके स्टेट को संभालती है, ठीक है। आवर कंट्री हैज 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज.
Okay children, now pay attention. Some correction is there in your book. Take your book please and turn the page number 232, paragraph first. I repeat again, पेज नंबर 232 पैराग्राफ फर्स्ट. वहाँ पर जो स्टेट दिए हुए हैं वो आपको 29 दिया हुआ है, आपको उसको चेंज करके 28 करना है. और यूनियन टेरिटरीज 7 दिया हुआ है, आपको उसको 8 करना है. ठीक है, 29 को 28 करना है और जो 7 है उसको 8 करना है. डोंट गेट कंफ्यूज, आई विल क्लियरफाई नाउ. आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ भी क्लियरफाई करते. ठीक है. In 2019, Jammu and Kashmir and Ladakh was converted into union territories. ये अभी जो हम बात कर रहे हैं ये रिसेंटली जो 2019 और 2020 में जो चेंजेस हुए थे उसके बारे में हम बात करें. ठीक है. इन 2019 जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख वॉज कन्वर्टेड इनटू यूनियन टेरिटरीज. जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो पहले स्टेट थे अब उनको कन्वर्ट करके किस में कन्वर्ट किया गया है, यूनियन टेरिटरीज में. ओके. इन जनवरी 2020, ये अभी रिसेंटली की बात हो रही है. इन जनवरी 2020 बोथ दादर एंड नागर हवेली एंड दमन द्वीप वर मर्ज टू फॉर्म अ यूनियन टेरिटरीज. जो हमारी अलग अलग जो दो यूनियन टेरिटरीज थी, कौन कौन सी, एक तो दादर एंड नागर हवेली और दमन द्वीप, इन दोनों को मर्ज करके मतलब उसको एक बना दिया गया है, जोड़ के एक बना दिया गया है, वन यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट कर दिया गया. ठीक है. After all these changes, at present we have total 28 state and 8 union territories in our country. ये सारे changes के बाद में we have 28 state and 8 union territories. Clear? Our next topic is state and capital. The city that is the base of all important government activities of a state is known as the capital of the state. ठीक है. यहाँ पर आप देख सकते हैं वी लिव इन एमपी, मध्य प्रदेश में हम रहते हैं और हमारा कैपिटल क्या है, भोपाल है. तो हमारे जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के जितने भी वर्क होते हैं, जो बड़े बड़े ऑफिसेस होते हैं, मेन ऑफिस जो होते हैं वो सब कहाँ पर होते हैं, भोपाल में होते हैं. ठीक है. वहाँ से उसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है. नाउ वी कैन सी अनदर मैप, इट इज पॉलिटिकल डिवीजन मैप. ठीक है. पॉलिटिकल मैप इट शोज ऑल द स्टेट बॉर्डर. पॉलिटिकल जो मैप होता है वो किसको शो करता है, जो हमारी स्टेट की जो बॉर्डर है उसको शो करता है, साथ में कैपिटल को भी बताता है. ठीक है. वी कैन सी हियर, जैसे हमारा एमपी है, हम उसकी बॉर्डर को यहाँ देख सकते हैं. ठीक है. और फिर साथ में राजस्थान. अभी ये जो बॉर्डर है इट मीन्स कि अब ये डिवाइड हो गया है कि ये जो एरिया है, जैसे यहाँ पर राजस्थान दिया हुआ है, तो जो राजस्थान का जो चीफ मिनिस्टर है वो सिर्फ राजस्थान की टेक केयर करेगा, मतलब राजस्थान की देखभाल को करेगा. ठीक है. लाइक हमारा जो एमपी है मध्य प्रदेश है, तो हमारे जो एमपी के जो चीफ मिनिस्टर है, ठीक है, वो क्या करेंगे, हमारा जो एमपी जो स्टेट है सिर्फ उसकी देखभाल करेंगे. ओके. यू कैन सी हियर ब्लैक डॉट ऑल्सो. यहाँ पे आपको काले काले ब्लैक कलर के डॉट भी दिख रहे हैं. ये किसको शो कर रहे हैं, जो हमारे स्टेट है उनकी कैपिटल को शो कर रहे हैं. ठीक है. ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. It shows different earth feature of India like mountains, desert, plateau and plain. There are 6 physical features in our country: the northern mountains, the northern plains, the Great Indian Desert, the southern plateau, the coastal plain and the island. हमारे इंडिया जो है उसको फिजिकल फीचर्स के हिसाब से 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है. ओके. इट शोज डिफरेंट अर्थ फीचर ऑफ इंडिया. जो फिजिकल फीचर्स है हमारा इंडिया के, जो फिजिकल फीचर्स है वो हमारे जो इंडिया के अर्थ फीचर को दिखलाता है, जैसे कि माउंटेन्स, डेजर्ट, प्लेट्यू एंड प्लेन. और आपने यहाँ पर ये मैप जो पॉलिटिकल मैप है इसमें आपने देखा जो पॉलिटिकल मैप है उसमें आप हमारी स्टेट की बॉर्डर्स को देखेंगे, कैपिटल्स को देखेंगे. ठीक है. लेकिन बट हम लोग जो फिजिकल फीचर्स का जब मैप देखेंगे तो हम लोग इसमें देखेंगे यहाँ पर आपको कहीं पर भी स्टेट की बॉर्डर्स नहीं दिख रही है. ठीक है. आई क्लियर इट. इन द फिजिकल फीचर्स में वी सी माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट एंड प्लेट्यू. द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन फिजिकल फीचर्स मैप
we do not see any state borders, only we can see our country borders. यहाँ पे फिर से क्लियर हुआ है कि जो हमारा फिजिकल फीचर्स का मैप होता है उसमें हम लोग सब जो डिफरेंट फिजिकल अर्थ फीचर्स है उसको देखते हैं, लेकिन हम लोग वहाँ पर बॉर्डर्स को नहीं देखेंगे. बट वी कैन सी ओनली आवर कंट्रीज आउटर बॉर्डर्स. जो हमारा इंडिया जो है उसके आउटर बॉर्डर को हम देख सकते हैं. ठीक है, लेट्स सी. हियर वी कैन सी चिल्ड्रन, यहाँ पर आपको थार डेजर्ट दिख रहा है. यहाँ पर आप कहीं पे भी आपको बॉर्डर शो नहीं हो रहा है, लेकिन ये शो हो रहा है कि यहाँ पर डेजर्ट है ना. उसके बाद में आप देख सकते हैं हियर वी कैन सी द वेस्टर्न घाट. सम अंडुलेशन इज देयर. यहाँ पर आपको कुछ अंडुलेशन दिख रहा है, मेजर अंडुलेशन है ना, उतार चढ़ाव. ये मेजर अंडुलेशन मीन्स होता है उतार चढ़ाव. और यहाँ पर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे ह्यूज अंडुलेशन दिख रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा ही उतार चढ़ाव दिख रहा है. वाई? बिकॉज यहाँ पर क्या है, द ग्रेट हिमालय. नाउ अब इसको अच्छे से आप समझ लीजिए. पहले जो अंडुलेशन ये इस कारण से हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ह्यूज माउंटेन्स है ना, बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स हैं. क्योंकि आप जानते हैं द ग्रेट हिमालय इज देयर, तो ये पूरा एरिया जो नॉर्थ का जो एरिया है ये पूरा माउंटेन्स है. एंड देन इधर वेस्टर्न घाट में आप देख सकते हैं यहाँ पे सम स्मॉल माउंटेन्स इज देयर. ओके, एंड जस्ट डाउन साइड में इसके क्या आता है, प्लेन्स आता है. ओके, यहाँ पर आप कहीं पे भी कोई माउंटेन्स को नहीं देख सकते हैं. वी कैन सी हियर ओनली प्लेन्स. हम सिर्फ यहाँ पे एक ग्राउंड देख रहे हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द डेक्कन प्लेट्यू. द डेक्कन प्लेट्यू ये क्या है, ये कहाँ पर स्थित है, हमारे एमपी में भी आता है, ये साउथ में भी आता है, इसका कुछ पार्ट महाराष्ट्र में भी अवेलेबल है. ओके, क्लियर? Learning outcomes. Now end of this chapter you are able to identify neighboring countries of India and know the difference between physical and political map. Children, hope अब आप इतना अंडरस्टैंड हो चुके हैं कि हमारे देश की नेबरिंग कंट्रीज कौन सी है, और आप डिफरेंसेस भी कर सकते हैं कि फिजिकल फीचर्स में क्या होता है और पॉलिटिकल फीचर्स में क्या होता है. Now our chapter is over. Let's move एक्सरसाइज. ओके, लिसन केयरफुली किड्स. आपको यहाँ पर मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाली हूँ. बिफोर आई स्टार्ट द एक्सरसाइज आई वॉन्ट टू से यू हैव टू मेक योर नोट कॉपी एंड आफ्टर दैट वी नाउ आवर चैप्टर इज ओवर. लेट स्टार्ट एक्सरसाइज. ओके किड्स, रिव्यूज ऑन. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर. पाकिस्तान लाइज टू द वेस्ट ऑफ इंडिया. The southeast and southwest of India are bordered by the coastal plains. Shimla is the capital of Himachal Pradesh. Chandigarh is the capital of Haryana. The Great Indian Desert region consists of the state of Rajasthan. Next question is write true or false. First is Sri Lanka is one of India's neighbors. True. West Bengal has two capital. False. The Andaman and Nicobar Islands are administered by their own state government. False. Hyderabad is the capital of Telangana. True. The Great Indian Desert located in the northeast India. False. Next question is answer this question in brief. Name all the neighboring countries of India. इसमें आपको पूरी neighboring countries को बताना है इस क्वेश्चन में. Next question is India is divided into how many state and union territories? 28 state and 8 union territories. Name the capital of any three southern state of India. Karnataka, Bengaluru, Tamil Nadu, Chennai, Kerala, Trivandrum. Fourth question is state the capital of three northeastern state of India. इसमें आपको state दिया है, आपको उसकी capital write करनी है. ठीक है, मणिपुर, इम्फाल, मेघालय, शिलोंग, मिजोरम, आइजोल. Next question is who look after the administration of the union territories? The central government look after the administration of the union territories. Read the capital city in different region of India. Circle the odd one. यहाँ पर आपको जो different है capital, उसको जो capital नहीं है उसको आपको राउंड करना है. ठीक है, मोहाली, कोची, आगरा, सिलीगुड़ी. Next question is answer this question in detail. Describe India's location in Asia. India is located in the southern tip of Asia. It's surrounded by the three water bodies. Next question is name the neighboring countries of India.
यहाँ पर नेबरिंग कंट्रीज है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव्स, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड चाइना। थर्ड क्वेश्चन इज नेम ऑल द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया एंड नेम वन स्टेट विच फॉल्स इन ईच रीजन। The physical features of India and a state located in each region is the northern mountains Jammu and Kashmir, the northern plains Uttar Pradesh, the Great Indian Desert Rajasthan, the southern plateau Karnataka, the coastal plain Odisha, last one is the island Andaman and Nicobar. Now final question, activity zone. Take a quick question on India and answer this question. The third largest country in Asia, it is India. The government that looks after all the state and union territories of India, central government. A city that serves as the capital of two states of India, Hyderabad. A landlocked neighboring country of India, Afghanistan. Now children, our chapter is closed now. हमने अभी एक्सरसाइज देखा है, आपको एक काम करना है, आपको अपनी एक नोट कॉपी तैयार करनी है, ठीक है। You have to make your note copy, okay, and listen carefully. Whatever I taught today, you have to do study, okay. Thank you.